मकान डिग गए ने, कई लोगों के दबे होने का खदशा जताया जा रहा है। हिमाचल दे विच लगातार भारी बारिश के कारण लगातार तबाही दीयां तस्वीरां सामने आ रही ने। पिछले दिनों दे विच किते हड़ आए ने, किते लैंडस्लाइड हुई है, किते सड़कां टुटियां ने ते किते लोगों के घर ढह गए ने ते हुण फिर तो भयानक तस्वीरां सामने आईयां ने। बस स्टैंड के नेड़े भयानक लैंडस्लाइड होया है। कुल्लू दे आनी की यह तस्वीर है। तस्वीर तुसीं देख सकते हो, दर्जना मकान तराशाई हो गए ने। इस तरीके नाल जिहड़ियां बिल्डिंगां ने ये जमींदोज होईयां ने। बहुत ही भयानक तस्वीर है। कई लोगों के दबे होने का खदशा भी जताया जा रहा है। कुल्लू दे आनी दीयां तस्वीरां ने, कई मंजिला इमारतां जमींदोज हो गई ने। तस्वीरां बहुत ही भयानक। हिमाचल तो लगातार अजिहियां तस्वीरां सामने आ रही ने जो चिंता भी वधा रही ने। कई मंजिला इमारतां डिग चुकियां ने, ढह-ढेरी हो चुकियां ने। कुल्लू दे आनी तो तस्वीर सामने आई है तो कई लोगों के दबे होने का खदशा भी जताया जा रहा है। हिमाचल की जो गल करिए तो कल भी भारी बारिश के चलते 12 लोगों की मौत की खबर सी। 300 तो ज़्यादा मौतां हिमाचल दे विच पिछले एक महीने के दौरान जो हालात बने ने उस दौरान हो चुकियां ने। ते हुण ये भयानक तस्वीरां कुल्लू दे आनी तो सामने आईयां ने जिथे कई मंजिला इमारतां जमींदोज हो गई ने। कई लोगों के फसे होने का खदशा भी जताया जा रहा है। बच्चे मर जाने इसमें, लोग थे इसके ऊपर। लोग के ऊपर है। बच्चे मर जाने इसमें, लोग थे इसके ऊपर। लोग के ऊपर है। बच्चे मर जाने इसमें, लोग थे इसके ऊपर। 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 बच्चे मर जाने इसमें, भयानक तस्वीरां कुल्लू तो सामने आईयां ने। कुल्लू दे आनी दे विच नवे बस स्टैंड के नेड़े कई मंजिला इमारतां ढह-ढेरी हो गई ने। किते ना किते खतरा आस पास दे जिहड़ियां इमारतां ने उन्हां दे लई भी बन जांदा है।
कई मंजिला इमारत टैटेरी ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। बच्चे मर जाने इसमें ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ बच्चे मर जाने इसमें ਸੜਕਾਂ वो फिर से ऊपर ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। बच्चे मर जाने इसमें ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਟੈਟੇਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। फिर से ऊपर ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁੱਲੂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਆਨੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਦਰਜਨਾਂ ਮਕਾਨ ਟੈਟੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। बच्चे मर जाने इसमें वो फिर से ऊपर 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 बच्चे मर जाने इसमें वो फिर से ऊपर। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਲਰਟ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਕਈ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਜਨਾਂ ਮਕਾਨ ਟੈਟੇਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਆਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਐਸੀਆਂ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਟੈਟੇਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਪਹਾੜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖਿਸ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲੂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਆਨੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਦਰਜਨ ਮਕਾਨ ਟੈਟੇਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਮੰਜ਼ਿਲਾ, ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਟੈਟੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ।
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। तुलसी भारती मेरे सहयोगी कुल्लू तो फोन लाइन से जुड़े ने। तुलसी, क्या कुछ इस वक्त की स्थिति है, ये कितनी देर पहले की तस्वीरें हैं, क्या कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, अभी तक की क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल अर्शदीप, देखिए जिस तरह से सुबह सवेरे जो है ये आनी बस स्टैंड के समीप जो भारी भूस्खलन हुआ है, लगभग 8 से 10 मकान जो है इस भारी भूस्खलन की चपेट में आए हैं। और फिलहाल अगर बात करें तो अब तक जो है जो जिस तरह से पूरी ये घटनाक्रम हुआ है उसमें जो है प्रशासन की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि इस एरिया को जो है पहले ही 5 से 6 दिन पहले असुरक्षित घोषित किया गया था और लोगों को जो है घर मकान खाली करने के लिए नोटिस भी दिए गए थे। तो कुल मिलाकर अब तक इस भारी भूस्खलन के कारण लगभग 8 से 10 मकान जो है वो पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं। और जिस तरह से अगर बात करें तो अभी तक ये जानकारी दी गई कि इस घटना में जो है किसी तरह के जान माल का नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है। लेकिन उस एरिया की बात करें तो लगातार जो भारी बारिश हो रही है उसके बाद बहुत सारे मकानों को जो है और भी मकानों को खतरा बना हुआ है। तो ये जो घटना हुई है ये सुबह सवेरे करीब 7 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है जब ये भारी भूस्खलन हुआ है। और इस एरिया में जो है पूरा का पूरा एरिया रिहायशी एरिया है जहाँ पर बहुत सारे मकान है, बड़े बड़े भवन थे। जिस तरह से ये जो भूस्खलन वहां पर हुआ है तो बड़े बड़े मकान लोगों के धराशायी हुए हैं, बहुत सारा नुकसान जो है उस एरिया में हुआ है। लेकिन जान माल का नुकसान की जो जानकारी है वो अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन प्रशासन की तरफ से ये साफ जानकारी दी गई कि उस एरिया में जो भूस्खलन हुआ है उसमें किसी तरह के जान माल का नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है। जी, जैसे आपने बताया कि इस एरिया को असुरक्षित अनसेफ बता दिया गया था और लोगों को घर खाली करने के लिए कहा गया था, तो कितना इलाका है जिसको पहले ही खाली कराया गया? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये जो भूस्खलन जहां पर हुआ है उस एरिया की अगर बात करें तो 20 से 25 मकान जो है उस एरिया में ये बताया गया था कि वो जो मकान है उनको असुरक्षित घोषित किया गया है। तो अब तक जो जानकारी मिल पाई है कि 8 से 10 मकान जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिम्मेदार हो गए हैं। लेकिन आसपास के जो मकान है उनको भी खतरा है और ऐसे में एहतियातन तौर पर प्रशासन की तरफ से उनको भी जो है लगभग उस एरिया की बात करें तो 20 से 25 मकान ऐसे हैं जिनको ये नोटिस दिया गया था कि वो मकान खाली करे। तो बहुत सारे लोगों ने मकान वहां पर खाली भी
किए गए हैं, ये जानकारी भी निकल कर आई है। और इस घटना की अगर बात करें तो इस घटना में अभी तक फिलहाल किस तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, ये जानकारी प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। लेकिन स्थानीय तौर पर वहां पर जो है ये जानकारी भी प्रशासन जुटा रहा है कि कहीं कोई मकान में कोई रह तो नहीं रहा था। अगर उसकी जानकारी भी जो है परिवार से, आसपास के लोगों से वो जुटाई जा रही है। जी अर्शदीप। जी शुक्रिया तुलसी पूरी जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਅਨਸੇਫ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 ਮਕਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜ਼ਮੀਂਦੋਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। जानी नुकसान कोई नहीं होया, लेकिन बहुत नुकसान लोगों का होया है। कई मंजिला इमारतां ढह ढेरी हो गई ने, आस पास के मकानों को भी खतरा बन गया है। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮਕਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਂਦੋਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ निर्देश दे दिते गए सी, नोटिस दे दिते गए सी। ये कुछ होर तस्वीरां सामने आईयां ने उस इलाके दियां ने। बहुत ही भयानक मंजर है। हिमाचल दे विच बहुत ही चिंताजनक हालात बने हुए ने। कुल्लू दे आनी दियां ये तस्वीरां ने। तुसीं देखो कि सिर्फ इमारतां ही ढह ढेरी नहीं हुईयां, उस इलाके दे विच दरख्त भी डिगे ने। आस पास दियां इमारतां दे लई भी खतरा बन गया है। लैंडस्लाइड हुई है, यानी कि पहाड़ां तो मलबा पहाड़ खिसक जाता है। ਤੇ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਕੁੱਲੂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਚੋਂ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪਹਾੜ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਖਿਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਆਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਉੱਥੇ मौजूद तो नहीं सी जिस वेले ये पूरा हादसा वापरिया है। कई मंजिला इमारतां ढह ढेरी हुई ने। रिहायशी इलाका दसिया जा रहा। फिलहाल किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन चिंताजनक तस्वीरां ने। हिमाचल के ਵੱਖ-ਵੱਖ इलाकों तो वार-वार ये तस्वीरां सामने आ रही ने ते अजिहे दे विच भारी बारिश के चलते चिंता होर वधी हुई है।
मेरे सहयोगी रणबीर शर्मा जुड़े हैं शिमला। तो रणबीर, क्या कुछ इस वक्त की स्थिति है शिमला में, अगर बात की जाए ओवरऑल, अगर आप हिमाचल का भी बता सके कि क्या कुछ स्थिति है अलग अलग इलाकों में? देखिए, हालात जो है पूरे हिमाचल में अभी खराब बने हुए हैं। जिस तरह से अभी ये थोड़ी देर पहले ये तस्वीरें निकल कर आई है, कुल्लू जिले का जो आनी क्षेत्र है, आनी का जो नया बस स्टैंड है, वहाँ पर ये जो है भवन गिरा है। और करीब 1 घंटे पहले का ये बताया जा रहा है कि ये वीडियो है। और 1 घंटे पहले ही जो है ये जानकारी निकल कर आई है कि जो मौके पर जो लोग थे उन्हें बार बार जो है आगाह किया जा रहा है। हालांकि अभी ये शुरुआती तौर पर जानकारी निकल कर आई है कि शायद कोई जानी नुकसान इसमें नहीं है, कोई मलबे में भी दबाव नहीं है, ऐसा जो है बताया जा रहा है। लेकिन अभी उसको वेरीफाई किया जा रहा है ये सूचना कितनी सही है या नहीं। तो लेकिन ये भी बताते चले कि जिला प्रशासन की तरफ से इस भवन को पहले ही अर्थव्यवस्थित जो है घोषित किया गया था और इस भवन को खाली करने के लिए नोटिस दिए गए थे। और ये भी जानकारी निकल कर आई है कि इस भवन के अंदर एक बैंक की शाखा भी थी, कुछ दुकानें भी इसमें थी। और ये भवन किसी इस भवन का मालिक एक नहीं है, कोई 3-4 लोग जो है इसमें पार्टनर बताए गए हैं। और लेकिन अब ये पता लगाया जा रहा है कि शायद कोई तो नहीं है जो मलबे के नीचे दबा हुआ है। लेकिन इसके ठीक ऊपर जिस तरह के जितने भवन है उन सबको यहाँ पर खतरा जरूर हो गया है। तो ये एक बड़ी घटना जो है आज निकल कर आई है। पूरे हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। जो मौतों का सिलसिला है वो लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में जो है कुल 13 लोगों की मौत हिमाचल में इस आपका की वजह से हुई है। और जो मौत का आंकड़ा है वो 361 तक पहुंच गया है। और 40 लोग ऐसे अभी भी है जो लापता है, जिसका पता नहीं चल पाया। तो लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं, चाहे वो भूस्खलन की है, गैस की है, कई जगह बादल पड़ रहा है, तो लगातार हर दूसरे तीसरे दिन किसी तरह की खबरें निकल कर आई है। और मौसम विभाग की तरफ से आज के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है आज से। जी रणबीर, अभी तक अगर हम बात करें तो कहां पर सड़कें अभी बंद हैं? क्योंकि हम सुबह ये भी तस्वीरें दिखा रहे थे कि कई इलाकों में लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। जी देखिए, हिमाचल में जो सुबह की जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि हिमाचल में छोटे बड़े अगर संपर्क मार्गों को भी जोड़ तो 500 से 600 सड़कें जो है हिमाचल में अभी भी बंद पड़ी हुई है। आपका मेजर सड़कों की बात करें जो कुल्लू है, कुल्लू जिला है, वो जो है पूरी तरह से मंडी से कटा हुआ है। और जो NH चंडीगढ़ मनाली NH है वो मंडी जिला में पूरी तरह से अब पड़ा हुआ है। और आज दूसरा दिन है और वहाँ के लिए जो वैकल्पिक मार्ग जो जाता था कटौला होकर तमाम होकर वो भी अभी जो है पिछले 24 घंटों से बंद है। और जगह जगह पर जो है भूस्खलन हो रहा है और लगातार कई जगहों पर ये देखा जा रहा है कि सड़कें अगर खुल भी जाती है तो वो आधे पौने घंटे बाद फिर बंद हो रही है। तो हालात हिमाचल में जो पूरी तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चिंताजनक बने हुए हैं। लगातार जो है प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से ये अपील की जा रही है, राज्य सरकार की तरफ से भी बार बार अपील की जा रही है कि अनावश्यक यात्रा में बचना चाहिए और रात के समय में तो बिल्कुल भी सफर नहीं करना चाहिए। और जी बिल्कुल रणबीर, फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ लोकेश कुमार जुड़े हैं, विधायक हैं इसी इलाके से, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोकेश कुमार जी, स्वागत है आपका। लोकेंद्र कुमार जी आपका स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब पर। अगर आप बता सकें कि इस वक्त के हालात क्या हैं? हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, काफी नुकसान लगातार हिमाचल में देखने को मिल रहा है। अभी की स्थिति क्या है, क्या कुछ आपके पास जानकारी पहुंच रही है? मैं बिल्कुल अभी तक जो है जहाँ पे जो स्पॉट है वहीं पे पहुंचा हूँ। लगभग 7 मकान जो यहाँ पे है गिर चुके हैं पूरी तरह से और 2-3 मकानों को खतरा बना हुआ है और बिल्कुल डैमेज हो चुकी है बिल्डिंगें, पर जानी नुकसान अभी तक कोई भी नहीं है जो अभी तक पता चला, क्योंकि मिसिंग की कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं है। जी
और कितना इलाका है जिसको अनसेफ बताया गया था? हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि पहले ही प्रशासन की तरफ से नोटिस दिए गए थे कि इन मकानों को या इन जो इमारतें हैं उनको खतरा हो सकता है। तो कितना का इलाका है जो अभी अनसेफ लग रहा है? लगभग जो है 5-6 बिल्डिंगें गिरने के बाद जो है अभी 5-6 बिल्डिंगें और गिरने की कगार पे है। अगर बारिश होती है तो एक बिल्डिंग गिर सकती है। जी जी जी। और अगर हम बात करें इस इलाके की तो अभी क्या जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जिस तरीके का नुकसान हिमाचल में देखने के लिए मिल रहा है, तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई रेस्क्यू के लिए इंतजाम किए गए हैं? क्या ऐसे हालात लग रहे हैं कि ऐसी स्थिति बन सकती है और क्या उसके लिए इंतजाम हो सकते हैं? क्योंकि हमारे सहयोगी अभी बता रहे थे कि 500-600 सड़कें बंद पड़ी। देखिए मैडम, हमारा जो क्षेत्र है जी वो वैसे ही बैकवर्ड क्षेत्र में आता है और अभी सरकार की ओर से वैसे भी इसको अनदेखा किया जा रहा है और हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि जो आनी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो भी काफी नुकसान में है। हमारा लगभग 800 किलोमीटर हमारी पूरी सड़कें हैं, जिसमें से हमारे पास सिर्फ 100 किलोमीटर की सड़क खुली है, क्योंकि लगातार अप्रैल से बारिश हो रही है और सरकार का हमारे क्षेत्र की ओर कोई भी ध्यान नहीं है। जी जी अगर हम बात करें, हम ये चीजें तो दिखा रहे हैं जो हमारे तक जानकारी पहुंच रही है कि कितना नुकसान हो रहा है, कितना फाइनेंशियल लॉस हो रहा है या लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन उसके अलावा जो आवाजाही है वो ठप हुई है, जो सप्लाईज हैं वो प्रभावित हुई हैं। तो अगर उसके बारे में अगर बता सके कि किस तरीके के हालात हैं, आम लोग जो हैं वो एक डर के माहौल में जीने के लिए मजबूर लग रहे हैं। आज की जो घटना हुई है इससे और डर का माहौल और दहशत का माहौल हमारे क्षेत्र में हुआ है, क्योंकि ये सबसे पक्की जगह मानी जाती थी और वो पूरी जगह जो है हिल चुकी है और नुकसान हुआ है। और पिछले 11-12 दिनों से हमारे क्षेत्र के अंदर ना पानी है ना बिजली है, और जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है, दूर दराज के इलाके पड़ते हैं, वो सारे अभी तक बिजली से और रोड कनेक्टिविटी से कट चुके हैं। जी जी और ये हम आनी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसके आसपास के इलाकों में क्या स्थिति है या आसपास के गांव हैं, शहर हैं, वहां पर क्या स्थिति है? आसपास के इलाके जो है, हमारे आसपास की जो पंचायतें हैं उसमें भी कोई स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि जो हमारी कुछ पंचायतें हैं, दलाश का क्षेत्र है, एक हमारा निर्मंड खंड पड़ता है, चाइल की पंचायतें हैं, नित्थर का क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पे जो है घर जो है गिरने की कगार पे, कुछ घर जो गिर चुके हैं। जी जी एक हम और बात समझना चाहेंगे, जो जिक्र बार बार हो रहा है, जिस तरीके के हालात बने हैं, कंस्ट्रक्शन को लेकर क्या चीजें कहीं नेग्लेक्ट किया गया इन चीज़ों को? दरिया के किनारे जिस तरीके से हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं, तो क्या उन चीज़ों को लेकर भी कोई नुकसान देखने को मिला है या आपको लगता है कि सिर्फ कुदरत का कहर है? देखिए, जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है इसके लिए बिल्कुल नॉर्म्स बनने चाहिए कि कितने मंजिल का मकान होना चाहिए। यहाँ पे 7, 8, 8, 9 मंजिलों के मकान बने हैं और वो पहाड़ी क्षेत्र बिल्कुल जो है हमारी सीधी चोटी के ऊपर मकान ऐसे 5-6 मंजिला बने हुए हैं, जो खतरा है और आगे के लिए भी खतरा बन चुका। तो मैं सरकार से यही, आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो मकानों का कंस्ट्रक्शन होना है इसके लिए आप जो है नॉर्म्स तैयार करें, ताकि जो लोग जो है ज्यादा बड़े बहुमंजिला मकान ना बनाएं। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आनी दे विधायक साडे नाल जुड़े लोकेंद्र कुमार उन्होंने नाम सी ते जानकारी दे रहे सी कि काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का कोई ज़्यादा ध्यान इस इलाके के वाल अजे तक नहीं गया है, ना बिजली है ना पानी है, सड़की जिहड़ा संपर्क है आसपास के इलाकों का वो टुट चुका है। आसपास के पिंडों की गल की जाए तो उत्थे भी भारी नुकसान होया है, लोगों के विच डर का माहौल बनया होया। खास करके वो ये भी कह रहे थे कि ये जिहड़ी तस्वीर सामने आई है, ये जिहड़ा इलाका जिथे ये नुकसान वेखण नूं मिलिया, जिथे लैंडस्लाइड हुई है, वो इलाका सुरक्षित मन्निया जांदा सी, लेकिन उत्थे इस तरीके की तस्वीर सामने आउण दे नाल लोकां दे विच बहुत ही डर का माहौल बन गया। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि इस नूं लैके नॉर्म्स जो उन्होंने जिक्र किया नियम बनने चाहिए ने कि पहाड़ी इलाकों च कित्थे मकान बन सकते हैं, किन्ने मंजिला मकान बन सकते हैं, ताकि अजिही तबाही ना वेखण नूं मिले। अगे दे लई भी खतरा है। विधायक इस पूरे मामले नूं लैके जानकारी दे रहे सी, मौके ते इस वेले पहुंचे हुए ने। ये तस्वीर है, इस इलाके नूं इन्हां इमारतां नूं पहलां ही खाली करा लिया गया सी, ये भी उन्होंने जानकारी दी, क्योंकि इत्थे खतरा बनया होया सी, लेकिन हुण आस-पास दे इलाके नूं भी खतरा बन गया है। भयानक मंजर लगातार हिमाचल तो सामने आ रहा है। भारी बारिश अजे भी लगातार जारी है। विधायक भी जानकारी दे रहे थे कि जे फिर तो बारिश होंदी है, भारी बारिश जारी रहती है।
ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। राजेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी इस वेले फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, क्या कुछ अभी स्थिति नजर आ रही है? विधायक हमारे साथ कुल्लू के आनी से जुड़े थे, बता रहे थे कि कंस्ट्रक्शन को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि निजम बनने चाहिए, नॉर्म्स तय होने चाहिए कि कितने मंजिला इमारतें बन सकती हैं, कितने मंजिला मकान बन सकते हैं। पहाड़ों की चोटियों पर बड़े बड़े मकान 8-8, 9-9 मंजिला इमारतें बनी हुई हैं, तो उसको लेकर नॉर्म्स भी बनने चाहिए क्योंकि आगे के लिए भी खतरा है। ये भी बता रहे थे कि ये इलाका प्रशासन की तरफ से इसको कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट किया गया है, यहाँ पर काफी दिनों से खतरे वाले हालात बने हुए हैं। जी बिल्कुल, आनी में बड़ा ये हादसा पेश आया है और 8 से 9 भवन थे जो खतरे की जद में थे और प्रशासन की तरफ से इनको हालांकि 1 सप्ताह पहले खाली करा लिया गया था। नोटिस इनको जारी कर दिए गए थे मकान खाली करने के, लेकिन कुछ लोग बार बार मकान के अंदर बाहर आ जा रहे थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से जरूर नोटिस चिपका दिए गए थे। एसडीएम नरेश वर्मा जो कुल्लू के हैं, आनी के हैं, वो मौके पर पहुंच गए हैं और लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पुलिस के जवान मौके पर यहां पर पहुंच गए हैं और देखा जा रहा है कि कहीं अंदर लोग तो नहीं रह गए हैं, क्योंकि जो लोग अंदर जा रहे थे प्रशासन के आदेशों के बावजूद वो कहीं अंदर फंसे ना हो, इस प्रकार की आशंका व्यक्त की जा रही है। लेकिन 8 से 9 ये कुल भवन है और इनको हालांकि खाली करा लिया गया था, लेकिन अभी भी वहां पर कुछ एक मकान है जो खतरे की जद में है और जिन्हें खाली करने के आदेश प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। डीसी कुल्लू घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास की ये घटना है जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ। लेकिन अब उसके बाद लगातार से ऑपरेशन है। स्थानीय लोग भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं और कोशिश की जा रही है स्थिति को संभालने की, कोई व्यक्ति अंदर ना हो, इस आशंका को देखते हुए लगातार यहाँ पर अब सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। लेकिन स्थिति हिमाचल प्रदेश में पूरे में नाजुक बनी हुई है। जिस प्रकार से बारिश हो रही है, पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हिमाचल प्रदेश में दर्ज हुई है। मंगलवार रात से लेकर अब तक की अगर स्थिति कहें तो बहुत भारी बारिश हो गई और अब स्थिति ये हो गई है कि अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो फिर जमीन ढीली हो रही है और कहीं भी लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं भी पेड़ गिर रहे हैं। भवन लगभग शिमला में कोई भी हिमाचल प्रदेश में कोई भी ऐसा शहर नहीं होगा जिसमें भवन खतरे की बिल्कुल राजेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ आशुतोष गर्ग जुड़े हैं जो कुल्लू के डिप्टी कमिश्नर हैं। सर, स्वागत है जी न्यूज़ 18 पंजाब पर। अभी के हालात क्या हैं? हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि इन इलाकों को, इन मकानों को पहले ही खाली करवा लिया गया था। अभी के क्या कुछ हालात हैं? बेसिकली ये टोटल 8 बिल्डिंग्स हैं जो इसमें लैंडस्लाइड में नीचे आई हैं एंड देयर ऑल मेजरली कमर्शियल बिल्डिंग्स और इनको सबको खाली करवा दिया गया था जैसा आपने बताया जी, क्योंकि एप्रीहेंशन था पिछले कुछ दिनों से कि नीचे से लैंडस्लाइड ट्रिगर हो रहा है एंड दे माइट कम डाउन। देयर आर अनदर 2 व्हिच हैव बीन बैडली डैमेज्ड, जो वो भी पूरी तरह से नुकसान उनको हो सकता है। बट एज सच जितनी भी खतरे की जोन में है उनको सबको खाली करवा दिया गया है। सो एंड देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ। So things are under control as of now. Our teams are on the alert और teams हमारी spot पे हैं and presently things are totally under control. जी, हमारे साथ विधायक भी जुड़े थे थोड़ी देर पहले। वो ये भी बता रहे थे कि आसपास की जो पंचायतें हैं वहाँ पर भी काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। तो ये जो लोग हैं जिनको आपने कहा कि इमारतें खाली करवा ली गई थी, तो कहाँ पर इनको रिहेबिलिटेट किया जा रहा है? फिलहाल रिलीफ कैंप जो है वो स्थानीय प्रशासन द्वारा वहाँ पे चलाए जा रहे हैं। लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो प्रेफर टू लिव इन विद समबडी एल्स, कोई नेबर्स या उनके रिलेटिव्स के पास भी, बट जिनके पास रहने के लिए कुछ नहीं है उनको रिलीफ ठहराया जा रहा है। एंड आनी में रिसेंट जो 14-15 की बारिश है उसमें आनी सब डिवीजन में काफी नुकसान हुआ है, जैसा आपने अभी मेंशन किया कि विधायक जी ने भी बताया। इट्स ट्रू दैट लॉट ऑफ एरियाज इन द पेरिफेरी आनी रूरल काफी नुकसान हुआ है, बट इट्स ट्रू फॉर द हिमाचल आल्सो एंड these efforts are going on everywhere. जी सर, कहीं पर रेस्क्यू ऑपरेशन या कहीं पर कोई इस तरीके की स्थिति बनी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा हो? अभी कोई एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल जी। और अगर हम आवाजाही की बात करें, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि बहुत सारी सड़कें अभी ब्लॉक हैं, इस इलाके में भी काफ़ी सारी सड़कें ब्लॉक हैं, तो उसको लेकर क्या कोई कोशिशें अभी हो रही हैं? क्योंकि लंबा जाम भी लगा हुआ है। कोशिश
जी, बट द इशू इज कि आज भी ऑरेंज अलर्ट है, कई सारे इलाकों में बारिश हो रही है एंड द मोमेंट रेन सबसाइड रेस्टोरेशन विल पिक अप फास्टर और तभी जो मेन कनेक्टिविटी मंडी कुल्लू की अभी डिसरप्टेड है वो बहाल हो पाएगी। जैसे ही आज प्रोबेबली इन द आफ्टरनून और इवनिंग मौसम बेटर होता है तो ऐसा भी। जी जी, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल्लू के डिप्टी कमिश्नर आशुतोष गर्ग साडे नाल जुड़े जिन्होंने जानकारी दी कि फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है कुल्लू दे विच। उन्होंने ये भी कहा कि भारी बारिश है जिसके करके मुरम्मत दे काफ़ी मुश्किल आ रही ने, लेकिन जो बारिश रुकती है तो कुल्लू मंडी आवाजाही भी बहाल हो जाएगी शाम तक अगर हालात सुखावे बनते हैं। अगर बारिश नहीं होंगी या बारिश रुक जाती है। दूसरा उन्होंने दसिया कि ये जिहड़ियां इमारतां ने कमर्शियल इमारतां ने तो इन्हों पहला ही खाली करवा लिया गया सी। लोगों को रिलीफ कैंप्स के भेजा जा रहा है जिथे किते रेस्क्यू की लड़ पैंदी है उसनों लैके भी लगातार जिहड़े रेस्क्यू कार्ज ने वो चलाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल कुल्लू दे विच स्थिति अंडर कंट्रोल है, ये डिप्टी कमिश्नर जानकारी दे रहे थे। हिमाचल दे विच भारी तबाही बारिशों के नाल लगातार हो रही भारी बारिश के नाल वेखण नूं मिल रही है। पिछले तकरीबन 1 महीने तो बार-बार ये तस्वीरां सामने आ रही ने। कुछ समा बारिशां नहीं हुई, हालात थोड़े काबू दे विच आने शुरू हुए, लेकिन फिर तो भारी बारिशों का दौर शुरू हो गया तो अजिहे दे विच तस्वीरां बार-बार सामने आ रही ने। फिलहाल कोई जानी नुकसान नहीं होया। डिप्टी कमिश्नर जानकारी दे रहे थे कि इन्होंने इमारतों को पहला ही खाली करा लिया गया सी क्योंकि हेठले इलाकों लैंडस्लाइड हुई सी तो इन्होंने इलाकों के लिए भी खतरा बन गया सी। तो इस दे चलते इन्होंने इमारतों को खाली करा लिया गया सी। एक बड़ी इमारत है डिप्टी कमिश्नर का कहना सी जो टैटेरी हुई है, लेकिन नाल दियां कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। वो आप बच्चे मर जाओ इसमें, वो ऊपर